ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے جہاں آنکھ کھولی وہ بہت گندی جگہ تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی مجھے اپنے ارد گرد گندگی کے ڈھیر نظر آئے۔ ہر طرف غربت اپنے پر پھیلائے بیٹھی تھی، لیکن میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے بعد میری زندگی تو بدل گئی، مگر پھر جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کا بھی دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ سوچتی ہوں کہ کاش میں اتنی ناشکری نہ کرتی تو اس حقیقت سے بہت دور رہتی جسے جان لینے کے بعد مجھے کبھی سکون نہیں ملا تھا۔ میرا نام ریشما ہے اور میرا تعلق ایک ایسی بستی سے تھا جسے ہم جیسے چند خاندانوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ ایسے لوگوں کی بستی تھی جہاں پر سب کے سب یا تو کچرا چننے والے تھے یا پھر بھیک مانگنے والے۔ میرا تعلق بھی ایسے ہی ایک خاندان سے تھا جو کچرا چننے کا کام کرتا تھا۔ میرے دادا دادی کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن اماں اور ابا یہی کام کرتے تھے۔ بستی میں سب لوگ جھگیوں میں رہتے تھے اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی زندگی اور حالت کو بدلنے کے بارے میں سوچتا ہو، بلکہ سب کے سب اسی حال میں مست اور خوش تھے۔ میرے اماں ابا کے پاس بھی ایک جھگی تھی جس میں اماں ابا کے ساتھ میں، میری 3 بہنیں اور ایک بھائی بھی رہتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ اس کے بعد میرا بھائی اور سب سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو اسی ماحول میں دیکھا تھا۔ مجھے یہ سب بچپن سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر طرف گندگی کے ڈھیر اور کچرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو لوگ کچرا چنتے تھے وہ بوریوں میں بند کر کے اسے وہیں پر رکھ لیتے اور پھر اگلی صبح جا کر بیچتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو 2-2 3-3 دن کاڑ کباڑ اور کچرا جمع کر کے پھر بیچا کرتے تھے۔ میری اماں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ ابا اور اماں ہم سب بہن بھائیوں کو لے کر کام پر چلے جاتے۔ ہم چاروں بہنیں اور بھائی الگ الگ ٹولیوں میں کام کرتے تھے۔ سب سے چھوٹی بہن اماں کے ساتھ ہوتی تھی، ایک بہن میرے ساتھ اور ایک بہن بھائی کے ساتھ کچرا چننے کا کام کرتی تھی۔ اس میں بھی ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں۔ کوئی گتے اور کاغذ وغیرہ اٹھاتا تھا، کسی کے ذمے بوتلیں اور ڈھکن اٹھانے کا کام تھا، اور کوئی دھات سے بنی کسی بھی چیز کو اپنے قبضے میں کر کے بڑا خوش ہو جاتا تھا۔ ہمارے پاس بھی چھوٹے چھوٹے تھیلے ہوتے تھے۔ ہمیں جو بھی کچرے کے ڈھیر سے ملتا وہ ہم تھیلوں میں جمع کرتے رہتے، اور پھر اماں ابا بھی وہیں پر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھ کر بستی میں چلے جاتے اور سارے دن کی جمع پونجی کا ڈھیر لگا کر الگ الگ کرتے تھے۔ شروع میں تو جب مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی تب یہ سب عجیب نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی مجھے گندگی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ حالانکہ میں ایسی گندگی میں پیدا ہوئی تھی اور اسی گندگی میں 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اگر اماں مجھے کچرے کے ڈھیر سے کوئی چیز اٹھانے کو کہتی تو اس چیز کو ہاتھ لگانے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ اس بات پر کئی مرتبہ اماں نے مجھے مارا بھی تھا۔ وہ مجھے گالیاں دیتی تھی اور باتیں سناتی تھی کہ کچرے پر پیدا ہونے والی لڑکی کو ایسے نخرے آتے ہیں جیسے کسی شیش محل میں پیدا ہوئی ہو۔ لیکن مجھ پر نہ تو اماں کی مار کا اثر ہوتا تھا اور نہ ہی باتوں کا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ میری نفرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہماری بستی میں ایک اور ایسی رسم تھی جو مجھے بے حد بری لگتی تھی۔ دراصل بستی کے تمام خاندانوں میں چھوٹی عمر کی شادیوں کا رواج تھا۔ میں نے خود ایسی شادیاں ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تھیں، جن میں دلہا دلہن کی عمر مشکل سے 14-15 سال ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اتنی کم عمر لڑکی کی شادی اچھے خاصے جوان مرد کے ساتھ بھی کر دی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بستی کے خاندانوں میں پیدا ہونے والے لڑکے لڑکیاں یہاں سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں اور چھوٹی عمر میں ہی ایسے رشتوں میں جڑ جائیں کہ پھر اپنی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے وقف کر دیں۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے تو یہی ڈر لگتا تھا کہ کہیں اماں ابا بھی میری شادی بھی کسی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی نہ کر دیں، کیونکہ میں تو خود وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ہمارے برابر والی جھگی میں میری بہن کی عمر کی لڑکی کی شادی جب زبردستی کی گئی تو میں اس دن بہت روئی تھی، کیونکہ اس کی شادی جس آدمی کے ساتھ کروائی گئی تھی وہ تقریباً میرے ابا کی عمر کا تھا۔ مانتی ہوں کہ اماں اور ابا کی شادی بھی اسی طرح کم عمری میں ہوئی تھی، لیکن اب تو وہ 5 بچوں کا باپ تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ کاش وہ یہ شادی رکوانے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اب تو وہ دلہن بن کے اپنے شوہر کے پاس جا چکی تھی۔
हाँ, मगर मेरे दिलो दिमाग में उसी दिन से भागने के मंसूबे बनने लगे। बस मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं यहाँ से भागकर जाऊँगी कहाँ, क्योंकि ना तो मेरा कोई जानने वाला था और ना ही कोई ऐसा ठिकाना नजर आता था जहाँ जाकर मैं पनाह ले सकूं। अब मेरे दिलो दिमाग में हर वक्त यही सब चलता रहता था। दिन भर काम के दौरान और रात को जमीन पर बिछी चादर पर लेटकर मैं बस यही सब कुछ सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर मुझे अपनी समझ के मुताबिक एक ख्याल आया जो मैंने अपनी अम्मा के सामने कह दिया, लेकिन मेरी अम्मा तो सुनकर गुस्से से भर गई। हालांकि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कचरा चुनने के बजाय हम लोगों के घरों में काम भी तो कर सकते हैं। तो अम्मा कहने लगी, हम जैसों को अपने घरों में कोई काम पर नहीं रखता, क्योंकि हम उनकी नज़र में गंदे और छोटे लोग हैं। इसीलिए ये सारे ख्वाब देखना बंद कर दे कि तेरी यहाँ से जान छूट जाएगी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, और अगर तू बाज ना आई तो तेरी शादी भी जल्दी करवा दूंगी। अम्मा की बातें सुनकर मेरा नन्हा सा दिल कांपने लग गया। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता था कि मेरी शादी भी अम्मा ना कर दे। इसीलिए अब मैं जब काम पर जाती तो आसपास के घरों पर नज़र रखती थी। मैं ये नोट करना चाहती थी कि कौन से घर में कौन रहता है, और अगर किसी को काम की ज़रूरत है तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। एक दिन मैं कचरा चुनते चुनते एक ऐसे इलाके में निकल गई जहाँ बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है उन्हें काम के लिए किसी बच्ची की ज़रूरत हो और वो मुझे काम पर रख लें। यही सोचकर मैंने कचरे का थैला एक जगह छुपा दिया। उस दिन इत्तेफाक से मैं अकेली थी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके थे। इसलिए अम्मा ने कहा था कि अलग अलग जगहों पर कचरा चुनने जाया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जमा हो सकें। मैंने कचरे का थैला किसी जगह पर छुपा दिया और एक घर में बेल बजाई। थोड़ी देर बाद चौकीदार वहाँ से बाहर आया और मुझे देखकर एक नागवार त्योरी उसके माथे पर आ गई। उसने मुझे कहा कि चलो जाओ, माफ़ करो, कोई पैसे या खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो आया। दिल चाहा कि कोई पत्थर उठाकर उसके सर में मार दूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और उससे कहा कि मुझे खाना या पैसे नहीं चाहिए बल्कि काम चाहिए। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और कहने लगा कि तूने अपना हुलिया देखा है? मालकिन और मालिक तुम जैसों को घर में घुसने नहीं देते और तुम काम की बात करती हो। ये कहकर उसने मुझे वहाँ से भगा दिया, लेकिन मैं एक घर छोड़ के अगले घर के सामने खड़ी हो गई और दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं आगे बढ़ गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। मैंने बेल बजाई तो एकदम से गेट खुल गया और कार में बेगम साहिबा और उनके बच्चे बैठे हुए नजर आए। वो लोग बाहर ही निकल रहे थे। मैंने मौके को गनीमत जाना और जैसे ही कार बाहर आई मैंने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने के लिए कहा। बेगम साहिबा ने कार का शीशा नीचे कर दिया और 10 रुपये का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उनसे कहा कि बेगम साहिबा, मुझे पैसे नहीं, काम चाहिए। आप मुझे अपने घर में छोटे मोटे कामों के लिए रख लें, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। मेरी बात सुनकर बेगम साहिबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने ड्राइवर से कहकर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था, और इसमें बुराई क्या थी कि अगर मैं अपने उस माहौल से निकलना चाहती थी। फिर मैंने हिम्मत ना हारने की ठान ली। अब मैं रोज़ाना मुख्तलिफ जगह पर इसी तरह काम के लिए बेल बजाती। कोई मुझे धुतकार देता तो कोई जवाब ही नहीं देता था, मगर बात कहीं बनती नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि अम्मा ठीक कहती थी कि हम जैसों को कोई अपने घरों पर काम नहीं देता, इसीलिए तो मजबूर हो कि हम कचरा उठाते हैं। फिर मैंने घरों में काम करने की कोशिश छोड़ दी। चुपचाप अपना काम अम्मा अब्बा के साथ करती रही। लेकिन अभी 1 साल ही गुजरा था कि अम्मा अब्बा ने मेरी बहन की शादी हमारी बस्ती के एक लड़के से कर दी। वो लड़का मेरी बहन से तकरीबन 7-8 साल बड़ा था, लेकिन कम से कम शादीशुदा या बूढ़ा तो नहीं था। इसीलिए मेरी बहन बड़ी खुश थी। हालांकि मुझे उसकी फिक्र हो रही थी कि वो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सब कुछ संभालेगी। वो मुझसे 1 साल ही तो बड़ी थी। मैं 15वें साल में थी और वो 16 की हुई थी। अगर मैं ये सब कुछ सोच समझ सकती थी तो वो क्यों नहीं इस बात पर सोचती थी। लेकिन उसे तो बस शादी का शौक चढ़ा हुआ था। उसकी शादी के बाद मैं और ज़्यादा मोहतात और फिक्रमंद हो गई। मुझे ऐसे लगता था कि अम्मा और अब्बा 1 साल भी नहीं गुजरने देंगे और मुझसे भी जान छुड़वा लेंगे। इसलिए मैंने एक दिन घर से भागने का इरादा कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं भागकर कहाँ जाऊंगी,
لیکن میں اب مزید اس خوف کے ساتھ اماں ابا کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی کہ پتہ نہیں کب وہ میری بھی کسی کے ساتھ شادی کروا دیں گے۔ ایک دن میں نے اپنے گھر سے بھاگنے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، مگر اب مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں روزانہ کی طرح کام پر نکل گئی اور کافی دیر تک بس ادھر ادھر پھرتی رہی یا بیٹھی رہی۔ میں نے اس دن کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں بس اپنے آپ کو ہمت دے رہی تھی کہ مجھے گھر واپس نہیں جانا ہے۔ لیکن جب ویسے ہی سارا دن گزر گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں جاؤں گی کہاں، تو پھر میں نے گھر کی راہ لی۔ میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میں کچھ دن تک کسی ایسے ادارے کے بارے میں معلومات لیتی ہوں جہاں پر مجھے پناہ مل سکے۔ اس سلسلے میں میں نے دوسرے دن سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں جہاں پر کچرا چننے کے لیے جاتی تھی وہاں آس پاس دکانوں یا راہ چلتے مسافروں سے ایسے کسی ادارے کے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن اس دوران مجھے احساس ہوا کہ ان لوگوں کی نیت اور نظریں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ میں تھوڑا ڈر گئی تھی۔ پھر مجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ چل گیا جہاں پر بے سہارا اور لاوارث لڑکیوں اور عورتوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ میں وہاں جانے کا ذہن بنا کر بیٹھ گئی، اور جس دن میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس ادارے میں جانا تھا، اس دن میں نے اپنے اس کچرے والے تھیلے میں 2-4 جوڑے رکھے اور گھر سے نکل گئی۔ لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اماں اور ابا میرے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے مجھے روک کر مجھ سے تھیلا لیا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو وہیں پر مجھے مارنے لگ گئے۔ اماں نے کہا، میں تو کافی دن سے تیری حرکتیں نوٹ کر رہی تھی اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تو لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا پوچھ رہی تھی، اور مجھے تیرے ارادے ٹھیک نہیں لگتے تھے، اسی لیے تجھ پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی میں نے، اور دیکھ لے آج وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ابا مجھے پکڑ کر واپس جھگی میں لے گئے۔ پھر اس کے بعد تو اماں مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، کام پر بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی اور جھگی میں بھی ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ پھر اماں اور ابا نے میری شادی کی بات بھی پکی کر دی۔ میں صرف 16 سال کی تھی اور میری شادی جس آدمی سے اماں اور ابا کر رہے تھے وہ مجھ سے ڈبل عمر کا تھا۔ وہ لوگ تو بس مجھے کسی کھونٹے سے باندھ لینا چاہتے تھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں۔ اس آدمی کا نام منظور تھا، وہ بھی ہماری بستی میں ہی رہتا تھا اور اس شادی پر بے حد خوش تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی 1 بیوی اور 3 بچے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں اور ابا اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں، آخر ان کو میری شادی سے کیا ملے گا۔ پھر جب شادی کے دن قریب آئے تو مجھے پتا چلا کہ انہیں منظور نے کافی پیسے دیے تھے، اسی وجہ سے وہ میری شادی منظور سے کروانے کے لیے تیار تھے۔ مجھے زبردستی دلہن بنا کے منظور کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ میں روتی دھوتی رہی مگر کسی نے میری ایک بات نہ سنی اور نہ مجھ پر ترس آیا۔ منظور سے شادی کے بعد تو میری زندگی اور بھی اجیرن ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی میری اماں سے کم نہیں تھی۔ مجھے بات بات پر گالیاں دے کر منظور کی پہلی بیوی کو بہت سکون ملتا تھا، اور تو اور منظور کے بچے بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ اس کی بڑی بیٹی تو مجھ سے چند سال ہی چھوٹی تھی، لیکن ہر چیز میں میرا مقابلہ کرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ منظور کے پاس برابر 2 جھگیاں تھیں، ایک میں اس کی پہلی بیوی اور بچے رہتے تھے، دوسری میں میں رہتی تھی۔ منظور زیادہ تر میری جھگی میں ہی پایا جاتا تھا۔ میں نے اپنی اماں اور ابا کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا، جبکہ اماں ہر دوسرے دن مجھ سے ملنے آ جاتی تھی۔ میں اب کچرا چننے کے لیے باہر تو نہیں جاتی تھی، لیکن مجھے یہ زندگی ہرگز منظور نہیں تھی۔ جب میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو منظور نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی غصے کی عادت بہت بری تھی، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کبھی کس بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ سارا غصہ مجھ پر اتارتا تھا۔ پھر جب اس نے نشے کی لت کی وجہ سے کام کرنا بھی چھوڑ دیا تو ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے۔ 2 بیویوں اور 3 بچوں کو پالنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تب اس نے اپنی دونوں بیویوں کو کچرا چننے کے کام پر لگا دیا، جس میں بچے بھی ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ یعنی شادی کے صرف 3 مہینے بعد ہی میں دوبارہ سے کچرا چننے کا کام کرنے لگ گئی تھی، لیکن اب میرے اندر بغاوت پہلے سے بھی زیادہ آ چکی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے باہر نکل کر کام کرنا میرے لیے یہاں سے فرار ہونے کا راستہ بنا دے گا، اور پھر مجھے بہانہ بھی مل گیا اور راستہ بھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے منظور کا انتقال ہو گیا۔ میں بیوہ ہو چکی تھی۔ میری ماں بہت رو رہی تھی، لیکن میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے مجھے کسی قید سے آزادی مل گئی ہے،
और जो सारी बस्ती हमारे गम में शामिल थी, उस वक्त मैं यहाँ से भागने के मंसूबे बना रही थी। फिर मैंने एक रात को बस्ती से निकल जाने का फैसला कर लिया और अपने चंद जोड़े साथ लिए और वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलकर मैं सीधी उसी इदारे में चली गई जो मैंने देख रखा था। उस वक्त वहाँ एक औरत ड्यूटी पर बैठी थी। मैंने उसे बताया कि मैं अकेली हूँ, मेरे शौहर वफात पा चुके हैं, मेरे लिए कोई रिहाइश या काम है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उस औरत ने कुछ ज़रूरी मालूमात मुझसे लीं और मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। वो एक ऐसा इदारा था जहाँ पर बेसहारा औरतों और लड़कियों को पनाह दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनको कोई ना कोई काम करवाने में भी उनकी मदद करते थे। मैं 2 दिन तक वहाँ रही तो उसी औरत ने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। मेरे पास तो ऐसा कोई हुनर नहीं था जो मैं उसे बताती। मैंने उसे कहा कि मैं घरों में काम कर सकती हूँ, उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 2-3 बंगलों में काम के लिए रखवा दिया। मैं सुबह के वक्त काम पर निकलती थी और शाम को मेरी वापसी होती तो मैं वापस उसी इदारे में जाकर सोती थी, क्योंकि किसी भी बंगले में मुझे रिहाइश नहीं मिली थी। इदारे की मैडम से बात हो गई थी कि जब तक मेरी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं होता मैं इदारे में रह सकती हूँ। वहाँ पर मुझ जैसी कुछ लड़कियाँ भी थीं, लेकिन ज़्यादातर औरतें थीं और बूढ़ी औरतें भी उसमें शामिल थीं। वही लोग मिलजुल कर खाना वगैरह बना लिया करती थीं और वो इदारा ट्रस्ट के तहत चलता था। कुछ औरतें वहीं पर सिलाई, कढ़ाई और दीगर ऐसे काम किया करती थीं जिससे आमदनी होती थी, लेकिन उससे आमदनी का ज़्यादा हिस्सा इदारे के पास जाता था। मैं जब शाम को काम से वापस आती तो मुझे भी उन लोगों के साथ कोई ना कोई काम करना पड़ता था। मैं ज़्यादातर सफाई या किचन का काम संभाल लेती थी ताकि मेरे वहाँ रहने पर किसी को कोई एतराज़ ना हो। ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए। मुझे बंगलों में काम करने पर जो पैसे मिलते थे मैं उनमें से कुछ पैसे ही इदारे की मैडम को भी दिया करती थी। फिर मैडम ने मुझे एक ऐसे बंगले के बारे में बताया जहाँ पर बंगले की मालकन को फुल टाइम मुलाजमा चाहिए थी। वहाँ पर मुझे रिहाइश भी मिल रही थी और खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं होनी थी। इसी वजह से मैंने बाकी सारे काम छोड़कर वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन ही इदारे की मैडम ने मुझे बंगले में पहुँचा दिया। बंगले की मालकन बहुत उसूल पसंद लग रही थी। बंगला बहुत शानदार था, ऐसे लगता था जैसे वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। मैं वहाँ जाकर खुश हो गई क्योंकि मेरे लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी हो गया था। मालिक ने बंगले के पीछे बने हुए क्वार्टरों में से एक क्वार्टर मुझे दे दिया और सारा काम भी समझा दिया। मुझे वहाँ पर किचन और साफ़ सफाई के सारे कामों की निगरानी करनी थी और मैं ही मैडम से डायरेक्ट बात करके सारे कामों की लिस्ट बनवाती थी। मुझे काम करते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और मैडम मेरे काम से मुतमईन थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे काम के अलावा कोई बात नहीं की थी। बंगले के मालिक का अपना बिजनेस था और मैडम भी ऑफिस आया जाया करती थी। मैडम का एक माजूर बेटा था जिसे मैंने हमेशा व्हील चेयर पर देखा था। मैडम का बेटा बहुत खूबसूरत और खूबरू नौजवान था। अगर किसी आम कुर्सी या सोफे पर बैठे हुए कोई उसे देखता तो वो पहचान नहीं पाता था कि मैडम का बेटा माजूर है। उसकी दाईं टांग बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो कब से इस हाल में है, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो शुरू से माजूर नहीं था। और फिर मुझे 1 महीने बाद वहाँ पर काम करने वाली एक मुलाजमा ने बताया कि मैडम का बेटा बहुत जिंदा दिल और काबिल लड़का था, लेकिन 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पूरी एक टांग ज़ाया हो गई और दूसरी पर भी बहुत चोटें आई थीं। तब से वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि मालकन और मालिक ने अपने बेटे के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाहर के मुल्कों में भी उसको लेकर गए, मगर जो टांग कट चुकी थी उसका इलाज कैसे हो सकता था। अलबत्ता उसे नकली टांग लगवाई गई थी, लेकिन वो उसके साथ भी चल नहीं पाता था। मैंने तो कभी उनको चलते फिरते हुए नहीं देखा था। मैडम के बेटे का नाम रिजवान था और रिजवान साहब के कामों के लिए एक मुलाजिम अलग रखा हुआ था। वही रिजवान साहब के सारे काम करता था। उनके कमरे की सफाई, सेटिंग और कोई भी चीज़ अगर रिजवान साहब मंगवाते तो उनके कमरे में सिर्फ और सिर्फ वही मुलाजिम जाया करता था। उनके कमरे में किसी और को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, इसीलिए कोई गलती से भी उनके कमरे की तरफ नहीं जाता था। रिजवान साहब का कमरा बिल्कुल कोने में बना हुआ था। मैंने तो किसी भी मुलाजिम या मुलाजमा को उस तरफ जाते हुए भी नहीं देखा था।
मुझे भी मैडम ने सख्ती से ताकीद की थी कि मैं किसी भी काम या वजह के तहत रिजवान साहब के कमरे में नहीं जा सकती। और मुझे ज़रूरत भी क्या थी? मेरे लिए तो यही बहुत था कि मैडम मुझ पर भरोसा करने लगी थी और मैं वहाँ क्वार्टर में ही रहती थी। कभी कभी मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी, अम्मा, अब्बा और मंजूर की भी याद आती थी। पता नहीं क्यों हम लोग अपने हाल को बदलने की कोशिश नहीं करते। हालांकि अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। काश मेरे अम्मा अब्बा भी किसी ऐसे रोज़गार की कोशिश करते कि उनके बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी मिल सकती, मगर उन्होंने तो अपने बच्चों को भी अपने साथ कचरे के ढेर पर सुलाना शुरू कर दिया था। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर ज़िंदगी में कुछ कर पाई तो अपनी बस्ती के लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगी। मुझे यहाँ काम करते और रहते हुए 2 महीने हो चुके थे, मगर अब तक मैंने मुकम्मल तौर पर बंगला नहीं देखा था। मैं तो हैरान होती थी कि इतने बड़े बंगले में सिर्फ 3 लोग रहते थे और हम जैसे लोग बाहर सड़कों पर झुग्गियाँ बनाकर रहने पर मजबूर थे। पता नहीं मैं क्यों अपने ख़ानदान और बस्ती वालों से अलग थी। एक दिन मैडम ने मुझसे मेरी उम्र और दूसरी शादी के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और एक बेवा हूँ। दूसरों के घरों में काम करती हूँ। भला मुझसे शादी कौन करेगा? ये सुनकर मैडम खामोश हो गई और मैं भी अपने कामों में मसरूफ़ रहने लगी। बंगले में रहते हुए मेरी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल चुकी थी। अब मैं अच्छे कपड़े पहनती थी, साफ सुथरी रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को नोट करने की कोशिश करती ताकि मेरा बोलने का तरीका और रख रखाव बेहतर हो सके, और ऐसा हो भी रहा था। मैंने बहुत जल्दी इतना कुछ सीख लिया था कि मैडम भी मुझसे खुश थीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो दिल की एक अच्छी खातून थी। शायद उनके बेटे की ऐसी हालत में उन्हें थोड़ा सख्त और संजीदा बना दिया था, इसलिए मैं बड़े दिल से उनका ख्याल रखने लग गई थी। एक दिन जब कोई भी घर में मौजूद नहीं था, मुलाजिम अपने काम में मसरूफ़ थे, तो मैं भी लाउंज में सफाई करवा रही थी। उस वक्त मुझे रिजवान साहब के कमरे से कुछ आवाज़ें महसूस हुईं, मगर मैंने उन आवाज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कोई नुस्वानी आवाज़ कमरे से आ रही है। हालांकि घर में तो मैडम थी ही नहीं और रिजवान साहब के कमरे में कोई भी औरत नहीं जाती थी। फिर मैंने सोचा कि शायद टीवी से आवाज़ें आ रही होंगी। लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद जब मैं काम मुकम्मल करवा के खुद चीज़ों को सेट करने में लगी हुई थी तो मुझे रिजवान साहब के कमरे से बहुत वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मैं कमरे के करीब ही खड़ी थी, अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैं परेशान भी हो गई कि रिजवान साहब के कमरे में कौन था, मगर मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे इस नौकरी से हाथ नहीं धोने थे। मैं अपने काम में लगी रही, लेकिन अब हर दूसरे दिन ऐसा होने लगा। रिजवान साहब के बंद कमरे में से लड़की के रोने धोने की आवाज़ आती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई बड़ी इल्तिजाएं कर रहा है। मुझे सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती थीं, अल्फाज की समझ नहीं आती थी, लेकिन रोने की आवाज़ तो बहुत वाज़ेह थी। मेरा दिलो दिमाग उलझ गया था। मैं जानना चाहती थी कि ये क्या राज है। मैंने इस बारे में अपनी साथी मुलाजमों से बात की तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। एक मुलाजमा ने बताया कि उसने भी कई मरतबा ऐसी आवाज़ें सुनी हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बेगम साहिबा से पूछे या रिजवान साहब के कमरे में जाकर देख सकें। दूसरी मुलाजमा कहने लगी कि हमें ज़रूरत भी क्या है, ये बड़े लोग हैं, जो मर्जी करते रहें, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। और उसकी बात सच भी थी, मगर एक इंसान और लड़की होने की हैसियत से मुझे तसस्सुस भी होता था और अफसोस भी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर कमरे से रोने की आवाज़ क्यों आती है। अगर कोई लड़की वहाँ थी तो वो बाहर क्यों नहीं निकलती थी। और मैंने तो 2 महीने में मैडम के अलावा किसी को भी रिजवान साहब के कमरे में आते जाते नहीं देखा था। हाँ, बेगम साहिबा या मालिक के मिलने वाले घर में आया करते थे, लेकिन उन्हें मेहमानों के कमरे में ही ठहराया जाता था। फिर मैंने इस रात से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं जिस तरह की घुटन भरी जिंदगी गुजार कर यहाँ आई थी, अब मुझे ये रोने धोने की पुरस्रार आवाज़ें बहुत बेचैन करने लगी थीं। एक दिन रिजवान साहब ने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। उनका ख़ास मुलाजिम जब उन्हें लेकर चला गया, उस वक्त बेगम साहिबा भी घर में मौजूद नहीं थी, तो मैं रिजवान साहब के कमरे में चली गई। कमरा काफ़ी बड़ा था, हर चीज़ उसकी जगह पर बड़े करीने से रखी हुई थी। ये तो मुझे मालूम था कि रिजवान साहब बड़े नफीस इंसान हैं,
लेकिन मुझे वहां पर कहीं भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिससे वो राज खुल सके जो कोई नहीं जानता था। फिर मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी। दूसरा दरवाज़ा तो यकीनन वॉशरूम का था, मगर वो दरवाज़ा कहाँ निकलता था। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। अब मुझे उसकी चाबी ढूंढनी थी। बेगम साहिबा के साथ रहते हुए मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये बड़े लोग चाबियों को कहाँ रखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिजवान साहब की अलमारी या दराजों में से कहाँ चाबी की तलाश करूं। लेकिन मैंने यूं ही बेख्याली में बेड पर रखे तकिया उठाकर देखा तो वहां एक चाबी पड़ी हुई नजर आ गई। मैंने वो चाबी उठाई और उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो एक और छोटा कमरा था जिसमें एक लड़की ज़मीन पर बैठी हुई नजर आई। उसने जब मुझे देखा तो भागती हुई मेरे पास आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोती रही है। उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं और चेहरा भी। वो लड़की बड़ी प्यारी थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लग गई और कहने लगी कि खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से निकाल लो, वरना मैं यहाँ मर जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और उसे यहाँ पर कमरे में बंद करके क्यों रखा गया था। उसने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। ऐसे तो नहीं लग रहा था कि वो कोई मुलाजमा है, और फिर मुलाजमा को ऐसे कोई क्यों रख सकता था। अभी मैं उन्हीं सोचों में और हैरानी की आलम में उस लड़की के पास खड़ी थी जो मेरे सामने रो रही थी। उसी वक्त बेगम साहिबा वहां पर आ गईं और वो बेहद गुस्से में थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे जान से ही मार देगी। बेगम साहिबा को देखते ही वो लड़की उनके पास चली गई और उनके पैरों में गिर गई। वो उनको भी वही बात कह रही थी कि मुझे जाने दें, मुझे बख्श दें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और पता नहीं वो लड़की रोते हुए क्या कुछ कह रही थी। बेगम साहिबा आराम से खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने उस लड़की को उठाया और मुझे पानी लाने का कहा। मैं पानी लेकर गई तो बेगम साहिबा उस लड़की को चुप करवा रही थी। फिर बेगम साहिबा ने कागजात की एक फाइल उस लड़की की तरफ बढ़ाई और उसे कहा कि आज से तुम आज़ाद हो। ये सुनते ही उस लड़की की आंखों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। उसने फटाफट वो फाइल पकड़ी और उसे बेयकीनी के साथ पढ़ने लग गई। उसके बाद वो वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। बेगम साहिबा ने ड्राइवर से कहा कि छोटी बेगम साहिबा को उनके घर छोड़ाए। मैं खामोशी से और हैरानी के साथ ये सब कुछ देख रही थी। उस लड़की के जाने के बाद बेगम साहिबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बड़े तहम्मुल से कहने लगी कि मेरे बेटे का जब 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी तो उसने ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया था। वो ना तो किसी से बात करता था और ना ही हंसता मुस्कुराता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जीने की उमंग सिर्फ वही लड़की पैदा कर सकती थी जिससे वो मोहब्बत करता था। वो दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हम उनकी शादी भी करवाना चाहते थे। लेकिन रिजवान का एक्सीडेंट हो गया और फिर उस लड़की ने रिजवान से शादी के लिए इनकार कर दिया तो रिजवान बिल्कुल टूट गया। 3.5 साल वो इसी तरह जिंदगी से मुंह मोड़कर अपने कमरे में कैद हो गया। फिर मैंने उसकी शादी उस लड़की से कर दी जो हमारे जानने वालों की बेटी थी। 6 महीने से वो यहीं पर रहती थी, लेकिन शादी के हफ्ते बाद ही वो यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन मैं एक मजबूर माँ थी, कैसे अपने बेटे को मरते हुए देखती। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो मानती नहीं थी, तो मुझसे बड़ी गलती हो गई और मैंने उसे छोटे कमरे में बंद करके रखना शुरू कर दिया। मगर अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने रिजवान से बात करके उसके तलाक के कागजात बनवा लिए और उसे यहाँ से भेज दिया। ये सब सुनकर मेरे दिल को भी बहुत दुख हुआ। मुझे एहसास हुआ कि अमीर हो या गरीब, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन अगले ही पल मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। जो मैडम ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मैडम न जाने क्या कुछ कह रही थी, मुझे कोई बात समझ आ रही थी और कोई नहीं। फिर उन्होंने मुझे सोचने का वक्त दिया और मैंने सोच समझकर उनके बेटे से शादी करने का फैसला कर लिया। आज मुझे रिजवान की बीवी की हैसियत से इस बंगले में रहते हुए 5 साल गुजर चुके हैं। रिजवान में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। वो अब अपनी नकली टांग के सहारे से चलने फिरने भी लग गए हैं, ऑफिस भी जाते हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैं अपने अम्मा अब्बा से भी मिली थी और बहन भाइयों से भी। मैंने उन्हें भी समझाने की कोशिश की और अब उनको मेरी बातें भी समझ आ रही थीं। अम्मा अब्बा मुझे इतने बड़े घर की बहू देखकर बहुत खुश थे। मैंने बहुत हद तक उनकी मदद की और मैंने जो सोचा था मैं उस पर भी काम कर रही हूँ।
اپنی بستی اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کے لیے میں نے ایک NGO سٹارٹ کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بچہ یا بچی میری طرح کچرا چننا یا بھیک مانگنے والا نہ بنے، اور میں اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہی ہو رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔